Hello students, this is part second for 7th class science students, chapter 4th heat and temperature, right? In the part 1 of the videos, right, I have discussed about the what is heat and how it flows like from high body of high temperature to a body of lower temperature. Then what exactly is the temperature कि भाई कोई चीज़ कितनी गर्म होती है और या फिर कोई चीज़ कितनी ठंडी है. For that we are using this physical quantity, that is your temperature, and for measuring the temperature we are using a device that is called as your thermometer, right? Thermometer के अंदर basically we follow the concept of thermal expansion. And what is thermal expansion? कि anything, any matter, it will expand on heating and it will contract. It will expand on heating and it will contract on cooling, right? That is basically the principle of thermal expansion. And we are using for this expansion, for this contraction, or for this expansion, we are using mercury, which is the only metal which can be found in the form of liquid. Then we discussed about the different type of units, or you can say the scales for measuring the temperature. So basically there are three different units, that is your degree Celsius, degree Fahrenheit, and Kelvin. And for each unit we are having a different scale, right? For degree Celsius we have for degree Celsius we have Celsius scale. For degree Fahrenheit we have a Fahrenheit scale. And for Kelvin we have a Kelvin scale. Okay. And before starting, again we discussed in the previous video that each and every scale, right, whatever type of scale it might be, अगर आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल भी निकालेंगे तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका और एक क्या होगा आपका एंड पॉइंट होगा, राइट? From where you will start, from where you can measure and up to where you can measure, right? So similarly in these scales also, whether it may be Celsius, Fahrenheit, or a Kelvin, will have a starting point and a ending point. And the distance between the starting point and ending point is divided into equal parts, and those equal parts are called as divisions. So this is a prerequisite for this video. Now getting into depth of the content that we are going to see today is first one will be your Celsius scale. So there are certain basic points to be remembered for each type of scales. So that's what you can see on your screen also, right? So if you are talking about Celsius scale, it is the most common one, right? Nowadays days, like when we are measuring the temperature, it is very common. Or you can see in your televisions when you are like looking at the news and all, जब वो बोलते हैं आज का दिन का तापमान इतना था, यहाँ पे इतनी गर्मी थी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था. So that is the one I'm talking about. कि Celsius is the one which is very common nowadays, right? And it was given by this scientist whose name was Andre Celsius. Now next two points are given as boiling point and melting point of water. As like melting point is given as 0 degree Celsius and boiling point is given as 100 degree Celsius. Now looking at these point, I want you to be clear with this topic here. Boiling point क्या होता है? Boiling point is a temperature exactly at which any liquid will start boiling, जिसे हम कहते हैं ना उबलना शुरू हो जाएगा. So it will be that temperature. And what is a freezing point? Freezing point is something, right? Freezing point will be for any liquid is a temperature at which a liquid will freeze or jump jayega, right? You can say conversion from a liquid to solid is happening, right? And melting point is again it is a temperature at which a solid will get converted into liquid. So in this chapter you will be might be confused because आपको थोड़ा बहुत बच्चों को पहले से पता रहता है कि यार पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, right? So don't but here I have written as melting point as 0 degree Celsius. So don't get confused because continuing further in this video only I'll tell you exactly why the term melting point is used or why the term freezing point is not used, or it can how it can be used, right? तो हम सेल्सियस स्केल पे वापस आते हैं. तो आपको पता लग गया कि बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है और मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है. किसका? पानी का. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमने पानी का बॉइलिंग पॉइंट और पानी का ही मेल्टिंग पॉइंट क्यों लिया है. Basically, if you are talking about the water, and when these scientists were carrying out the experiments, it was possible to achieve these temperatures with the water only. Basically, उस टाइम पे का अगर काफ़ी सालों पहले की बात करें तो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि भाई पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है या फिर जब वो डिफरेंट स्केल्स बना रहे होंगे तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर या फिर ये बॉइलिंग या फिर ये मेल्टिंग पॉइंट या फिर ये बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर जो होता है, that was easily achievable by the scientists in the laboratory conditions. That is why the water property is being used for expansion of mercury in a thermometer. Got my point? The properties of water are used for the expansion of mercury
इन अ थर्मोमीटर, राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कितनी डिविजन्स होती हैं, राइट। अगेन आई एम टेलिंग, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड एंडिंग पॉइंट इज 100, तो अगर आप इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स बन जाएंगे आपके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 100 माइनस 0, राइट। सो यू विल गेट 100 डिविजन्स, और हर एक डिवीजन कितने वैल्यू की होगी आपकी, 1 डिग्री सेल्सियस की। So right, this was about your Celsius scale. Now moving on to your Fahrenheit scale, it was given by Mr. Gabriel Fahrenheit. और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट is considered as the melting point of water, okay, and 212 डिग्री फ़ारेनहाइट is considered as the boiling point of water. फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें, राइट। अब ये अलग अलग वैल्यूज आ रही कि वहां हमने 0 डिग्री सेल्सियस बोला था और यहाँ हमने बोला 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला, राइट। वहां पे हमने बोला 100 डिग्री सेल्सियस बोला था और यहाँ पे हमने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला, राइट। अब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए, अगर कोई बच्चा बोलता है कि मेरी हाइट तो 1 मीटर है, 1 मीटर है, राइट, मेरी हाइट 1 मीटर है, और दूसरा बच्चा बोलता है कि मेरी हाइट 100 सेंटीमीटर है, तो आप किसकी हाइट को बड़ा बोलेंगे, राइट। इट्स वेरी ऑब्वियस, राइट, बिकॉज आपको पता है कि 101 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि दोनों की जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, सेम आ रही है। सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशन एग्जैक्टली हैपेंस हियर आल्सो, राइट, विल सी, राइट। अब इसके अंदर डिविजन देख लेते हैं, कितनी डिविजन होती हैं भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, 212, दैट इज, एंड माइनस 32 विल बी 180। सो हर एक डिवीजन 32 से लेकर के अगर हम 180 212 तक जाएं तो कितनी डिवीजन बीच में आएंगी, 180, और हर एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की होगी। नाउ द लास्ट स्केल, दैट इज योर Kelvin scale, right? Kelvin scale was given by the Mr. Lord Kelvin, right? And here if you are talking about अलग-अलग values आ रही हैं, right? So here the values are like 273 Kelvin is considered as melting point of water, and 373 Kelvin is considered as boiling point of water. आपने एक बात देखी होगी ध्यान से, राइट, कि मैं डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, मैं डिग्री फ़ारेनहाइट बोल रहा हूँ, तो बेसिकली दैट स्मॉल जीरो इज देयर ऑन द टॉप ऑफ इट, राइट। तो वहां पे आपका हम क्या बोलते हैं, डिग्री, एंड दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर सेल्सियस एंड फॉर फ़ारेनहाइट, बट नॉट फॉर केल्विन। इट इज द साइंटिफिक कन्वेंशंस एंड कैलकुलेशंस व्हाट दे हैव असाइंड, राइट, सो वी हैव टू फॉलो देम। अच्छा भाई, तो अब इस पे आते हैं, केल्विन पे आते हैं वापस घूम फिर के, कि हमने आपको बोल दिया कि भाई 273 केल्विन हो गया और 373 केल्विन हो गया, यानी कि 273 पे पानी आपका मेल्ट हो जाएगा और 373 पे आपका पानी आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब डिविजन्स कितनी हो जाएंगी आपकी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 373 माइनस 273, एंड यू विल गेट 100, यानी कि 100 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 केल्विन, राइट। अब होता क्या, अभी अलग अलग वैल्यूज आप लोगों ने देख ली कि भाई 0 डिग्री, 100 डिग्री, फिर आपने बोला 32 डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर आपने बोला 273 केल्विन, 373 केल्विन। तो दैट इज द डायग्राम दैट यू कैन सी, राइट। यहाँ पे आपका डायग्राम बनता है, आपने तीनों स्केलों को एक साथ कंबाइन कर लिया है, राइट। व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्केल इज योर फ़ारेनहाइट, सेकंड इज योर सेल्सियस, एंड थर्ड वन इज योर केल्विन, राइट। अब यहाँ पे हमें तो बोला गया था कि पानी आपका मेल्ट होगा, बट यहाँ मैंने लिख रखा है पानी जमेगा, यानी पानी फ्रीज होगा। ऊपर वाले में कोई पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट इज योर बॉयल होगा, राइट। यानी कि 212 डिग्री, 100 डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड 373 केल्विन। अच्छा भाई, अब इसको डायग्राम को देखिए, पिक्चर क्या क्लियर होती है कि 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट वो एक ही चीज है, मतलब वो एक ही टेम्परेचर है। यानी कि भाई तीन बंदे गए अलग अलग से, राइट। एक बंदे ने बोला कि मेरा पानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, एक बंदे ने बोला कि भाई, जिसके पास फ़ारेनहाइट स्केल था, उसने बोला मेरा पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल हो रहा है, और तीसरा बंदा बोल रहा है कि भाई मेरा पानी तो 373 केल्विन पे बॉयल हो रहा है। तो राइट, अभी अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि तीनों की तीनों वैल्यूज क्या आ रही है बेटा आपकी, बिल्कुल सेम चल रही हैं, राइट। अब उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पानी जमने वाला केस, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट वाला केस कंसिडर करते हैं, राइट। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, ये वो टेम्परेचर है जब आपका पानी जम जाएगा या फिर आपका पानी पिघलना शुरू हो जाएगा। फिर से कंफ्यूजन, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, आप मेल्टिंग पॉइंट कब बात करते हैं, आप मेल्टिंग पॉइंट की तब बात करते हैं जब आपका कन्वर्जन कब हो रहा होता है, लिक्विड से सॉलिड। जब आपका कन्वर्जन लिक्विड से, सॉरी, लिक्विड से आपका सॉलिड कन्वर्जन होगा तो आप क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, माय मिस्टेक। लिक्विड से अगर सॉलिड होगा तो आप क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। और जब आपका सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा तो आप क्या बोलेंगे इसको, मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपका पानी पहले से ही जमा हुआ है, राइट, बर्फ रखी हुई है काफी, और आप उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे ही आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा,
राइट। अगर आपका पानी लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ है और आप उसे फ्रीज में रखते हैं, राइट, तो कब मेल्ट होगा, कब आपका फ्रीज हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो पानी आपका फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। दैट वाज द कंसेप्ट एंड दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव बेसिकली which is used for the interconversion between different scales, right। नॉर्मली आपको पता है कि यार 1 मीटर में कितने होते हैं आपके सेंटीमीटर,